الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کا شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دین کی نسبت پر ہمارے اجتماع میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ اجتماع کا مقصد خالی لوگوں کو جمع کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک بات جو بار بار سنتے رہتے ہیں اس کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ عربی میں ایک بات کہی جاتی ہے اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ بات دل کے اندر ثابت ہو جاتی ہے، جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اجتماع میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زندگیوں کے بدلنے کا ہم سب ایک تہیہ کریں، ایک نیت اور ارادہ کریں۔ آدمی اپنے اندر سے غفلت کو دور کرے۔ غفلت یہ انسان کی، زندہ انسان کی ایک موت ہے۔ جب تک آدمی اپنے اندر سے غفلت کو دور کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر نہیں ڈالے گا، وہاں تک نہ اس کی دنیا آباد ہوگی نہ اس کی آخرت آباد ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، ہمارا یہ مجمع جو جماعتوں میں جا رہا ہے انشاءاللہ یہ تو اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائے گا، اور ان کے سامنے ابھی ضلع کے ساتھیوں کی طرف سے انشاءاللہ روانگی کی تفصیل کے ساتھ بات بھی ہوگی۔ ایک بہت بڑا مجمع ہمارا گھروں پر جا رہا ہے۔ گھر پر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری چھٹی ہو گئی۔ ہماری چھٹی تو اس دن ہوگی جس دن حق تعالی شان ہوں مجھے آپ کو حساب کتاب سے فارغ کر کے یوں کہہ دے تو جنتی ہے، اس دن میری آپ کی چھٹی ہو جائے گی کہ جنت میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی عمل نہیں ہے، جنت میں انشاءاللہ آپ کی تشکیل بھی نہیں کریں گے، وہاں کوئی نہیں آئے گا چلا جاؤ 4 مہینہ جاؤ سمجھے گشت کرو، ایسا کہنے کے لیے انشاءاللہ جنت میں کوئی نہیں آئے گا۔ جو کچھ ہے وہ یہاں پر ہے۔ اس لیے واپس جانے والا مجمع اس نیت کے ساتھ جامے کہ انشاءاللہ ہمیں گھروں پر جانے کے بعد اللہ کے راستے میں جلدی سے جلدی نکلنے کی تیاری کرنی ہے۔ بھئی نیت کرتے انشاءاللہ، اور جب تک نکلنا نہ ہو وہاں تک اپنے آپ کو میرے بھائیوں نمازوں کا پابند بناویں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، دن کے 24 گھنٹے میں کوئی وقت نکالے دعا کے لیے، اور دعا مانگنے کا ہم سب اہتمام کریں۔ اپنی مزیدار جماعتوں کے ساتھ بیٹھے مشوروں میں، اور روزانہ 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کے اطراف کے اندر محنت کر کے ماحول بنانے کی فکر کریں۔ ہر ایک آدمی 2.5 گھنٹے دے گھڑی دیکھ کر اور محنت کریں کہ بھائی ہمارے محلے میں ایک آدمی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے، 100% لوگ نمازی بن جاؤں گے، 100% مجمع کی دین کی محنت کے لیے جان مال وقت کی ترتیب بن جاؤں گے۔ ہر آدمی اللہ کا زمین پر خلیفہ ہے، اس ناطے سے اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ کا نائب ہے، اور حضور کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی محنت میں لگے، ہر آدمی اس میں لگے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں چل پھر کر لوگوں کی ذہن سازی، گھروں میں بیٹھ کر ان سے بات، ترغیب، ہمت افزائی، لوگوں کو سراہنا، اور اپنی مسجدوں کو مسجد کے اعمال سے آباد کرنا، اس نیت سے ہمارا یہ سارا مجمع جامع۔ گھروں میں تعلیم کی پابندی کریں، مسجد کی تعلیم میں شرکت کریں۔ تعلیم کا عمل میرے دوستوں بھائیوں یہ ہمارے ایمان کی خوراک ہے۔ جیسے جسم کی غذا اور خوراک ہوتی ہے کہ اس کے بغیر جسم کمزور ہو جاتا ہے،
ऐसे ही तालीम के बगैर हमारा ईमान अंदर से कमजोर हो जाता है। अपने बच्चों को, अपने घर की औरतों को लेकर हम में का हर एक आदमी भाई मगरिब बाद, इशा बाद फजाइल अमाल की किताब को लेकर बैठे, पढ़े पढ़ावे, सुने सुनावे, फजाइल को सुनावे अपने घर वालों को, कि इसके जरिए से तबीयतों में शौक और रगबत पैदा होगी। अल्लाह ने इंसान को लालची बनाया है। मैं हूं, आप हैं, सब लालची है। हमारी फितरत में अल्लाह ने हिर्स और लालच रखी है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात उतारी, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से खिताब किया कि आपके घरों के अंदर जो कुरान और हदीस, हिकमत, कुरान और हदीस की जो बातें हैं, इनका आपस में चर्चा किया करो, मुज़ाकरा किया करो। तालीम का अमल इसी के लिए है कि अल्लाह रसूल की बातों के चर्चे, तस्करे, पढ़ने पढ़ाने का माहौल, इसका हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन को अल्लाह ताला ने दिया। जिस बात का हुजूर के घराने मोहताज हैं, क्या हमारे घराने मोहताज नहीं है? हमारे घराने मोहताज है मेरे भाई। हम पढ़ें, सुने तो इंशाअल्लाह रोजाना पढ़ने सुनने की बरकत से हर एक की तबीयत में अल्लाह ताला दीन पर चलने का दाइया और जज्बा बनाएगा। सहाबा जो सहाबा बने ना, इनके मर्द औरत, वो हुजूर की बातों को सुनकर बने। उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की कोई किताब नहीं थी, न उस जमाने में किताब का कोई रिवाज था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में शिरकत करके जो बात अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते थे, इन बातों को अपने घर की औरतों को सुनाते, बच्चों को सुनाते, जिसकी वजह से इनकी जिंदगियां बदली। अगर हम आप तब्दीली चाहते हैं अपनी जिंदगियों में, अपने घर वालों की जिंदगियों में, तो मेरे भाइयों ये तालीम का अमल बड़ा जबरदस्त इसके लिए मौसीर है। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातें 4 घंटे तालीम करती हैं। हम घरों पर जाने वाले रोजाना आधा घंटा तालीम किताब पढ़ने का मामूल बनावे। अल्लाह ने आज भी अपने नबी की बातों में असर रखा है। जैसे मादी चीजें हैं ना, मादी चीजें खाने पीने की, इसका एक असर होता है। आप नमक खाओ खारा लगेगा, इमली खाओ तो आपको खट्टी लगेगी, आप शक्कर गुड़ खाओ मीठा लगेगा, आप करेला खाओ आपको कड़वा लगेगा। तो इन चीजों की ये कड़वाहट, मीठा, ये सब कोई आज की तासीर नहीं है। ये सदियों से इन चीजों के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी। शक्कर गुड़ हुजूर के जमाने में भी मीठा था, आज भी मीठा है। सदियां बीत गई, दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब हुए, लेकिन इन इनकलाब ने इसकी मिठास पर कोई असर नहीं किया। नींबू खट्टा है तो आज का खट्टा नहीं है, वो सदियों से खट्टा है। इसके खट्टापन पर दुनिया के अंदर बड़े बड़े इनकलाब हो गए, लेकिन कोई इसके खट्टापन पर असर नहीं। मादी चीजों की तासीर आज भी अपनी उतनी कुव्वत के साथ चीजों के अंदर बाकी है। जब मेरे भाइयों इतना लंबा तवील जमाना गुजर गया, इन चीजों की तासीर खत्म नहीं हुई, न खट्टापन खत्म हुआ, न कड़वापन खत्म हुआ, न तीखापन खत्म हुआ। मेरा आपका क्या ख्याल है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का असर खत्म हो जाएगा? यह कभी खत्म नहीं हो सकता है, बशर्ते कि मैं आप इसको एहतिमाम से अपने घर में पढ़ने पढ़ाने का और मस्जिदों में तालीम के हलकों में बैठकर सुनने सुनाने का एहतिमाम करें। हम लोग पाबंदी करें, जिंदगियां इससे बदलेगी। इसलिए सारा मजमा नियत करें कि मस्जिद की, घर की तालीम के अंदर इंशाअल्लाह हम पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अरे नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है? माशाअल्लाह, अल्लाह सबके लिए आसान फरमावे, सबको कबूल फरमावे। अपनी मस्जिदों में गश्तों की पाबंदियों में रहें। कहीं पीर के दिन है, कहीं इतवार के दिन है, कहीं जुमा के दिन है ना। आमतौर पर हमारे यहाँ मगरिब की नमाज के बाद उमूमी गश्त होता है। गश्त के दिन में मेरे दोस्तों भाइयों, हम अपना क्या है, सारा काम काज छोड़कर 2 नमाजों के बीच का पूरा वक्त फारिग करके अपने मोहल्लों में होने वाली इस मेहनत के अंदर शरीक हों। ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मुबारक मेहनत है। घर घर जाना, दर दर जाना, फर्द फर्द के पास जाना,
अल्लाह की दीन की बातों को अल्लाह के लिए लेकर जाना, ये नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ने ये मेरे और आपके जिम्मे ये काम रखा है मेरे भाइयों। ये खाली सवाब की चीज नहीं है, एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी कि हर आदमी अपने मोहल्ले में चल फिर कर मेहनत करके क्या करे मेरे भाइयों, लोगों के पास जाकर इफाम और तफहीम तरगीब और लोगों की जहन साजी करके लोगों को तैयार करें। पहले दूसरे गश में 2 नमाजों के बीच का वक्त फारिग करके हम मेरे भाइयों पाबंद बने और महीने में अपना हफ्ता तय करके 3 दिन पाबंदी के साथ लगावें। पाबंदी के साथ 3 दिन हमारा मजमा लगावें, हमारी अपनी जमातें बनावें, नए नए लोगों को तैयार करें, महीने में 3 दिन लगावें, 27 दिन अपने मकाम पर नमाजों के साथ, अपने अमाल के साथ, अपनी हलाल पाक रोजी के कमाने के साथ रहें। 3 दिन अल्लाह के लिए फारिग करके अतराफ के छोटे छोटे देहातों में जहां ईमान वाले बसते हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऐसे कस्म पुरुष लोगों के पास जाकर मेरे भाइयों, इनके पास जाकर इनकी मेहनत करना और इनको भी अल्लाह के दिन की मेहनत के लिए तैयार करना। हमारे 3 दिन लगेंगे, हाँ हमारे लगेंगे 3 दिन। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि अल्लाह ताला कहता है 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10। आप 3 दिन लगाएंगे तो पूरा महीना अल्लाह के दीन की मेहनत करने का अल्लाह ताला हमें आपको अजर सवाब देगा। लगेगा 1 दिन और मिलेगा अजर सवाब पूरे महीने का। आसान चीज हमको दी गई है, हम आप इस आसानी को इख्तियार करने वाले बने। हम में का हर एक आदमी तय करें, हमारा गश्त नहीं छूटेगा, हमारे 3 दिन नहीं छूटेंगे, पाबंदी के साथ गश्त करेंगे, पाबंदी के साथ 3 दिन लगाएंगे। करते हो सारे भाई नियत। और मेरे भाइयों, जैसे शुरू में एक बात बताई, नमाजों का एहतिमाम, जिंदगी के अंदर नमाज का एहतिमाम करें। मुसलमान की पहचान जो है वो नमाज है। मेरी आपकी पहचान हमारा आई कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, मेरी आपकी पहचान नमाज है। मुसलमान नमाजी होता है, बेनमाजी नहीं हो सकता है। नमाज का छोड़ देना यह ईमान वालों का काम नहीं है, बेईमानों का काम है। ईमान वाला आदमी अपनी नमाज पढ़ता है, चाहे वो कहीं रहता हो, कहीं बसता हो, किसी भी हालत और कंडीशन के अंदर हो, वो नमाज को नहीं छोड़ेगा। हम नमाजी बने, अपने घरों में 100% नमाज का माहौल, घर की खवातीन में, घर के बच्चों में, बहुओं में, बेटियों में जिंदा हो, इसकी मेहनत। अपने मोहल्लों में 100% नमाज। आप देखें, हर मस्जिद के पुराने नमाजी होते हैं, मस्जिदें जुमा के दिन नमाजियों से भर जाती हैं और बाकी दिनों में खाली होती हैं। जुमा के दिन देखें, मस्जिद के खादिम मुअज्जिन साहब जो होते हैं ना, तो वो सहन के अंदर भी चटाइयां बिछाते हैं। मस्जिद 2 माल की है, 3 माल की है, तो वो दूसरे माले पर भी बिछाते हैं, तीसरे माले पर बिछाते हैं। वो अल्लाह का बंदा सुबह से सफाई करता है, चटाइयां बिछाता है, सफाई करता है, चटाइयां बिछाता है, 12 बजे फारिग होता है, नहाता है, धोता है, जुमा की तैयारी करता है। और जब जुमा पूरी हो जाती है ना, तो तीसरे माले से सफे लपेटना शुरू करके अंदर ऊपर रख देता है, दूसरे माले की लपेट कर रख देता है, मस्जिद के सहन के अंदर होती है इसको लपेट कर रख देता है। क्यों? इसको यहां तक नहीं, यहां तक यकीन है ये जितने जुमे में आए इतने आज असल में नहीं आएंगे। क्या बात है, हमारी मेहनत नहीं है। मुसलमान जुमा पढ़ने को तय करता है तो कहीं भी होता है, इसकी जुमा फौत नहीं होती है, बहुत एहतिमाम से जुमा पढ़ता है। इसने तय नहीं किया है 5 वक्त नमाज पढ़ना, इसने तय नहीं किया है, अपना मन नहीं बनाया है। अगर आदमी अंदर से अपने मन को बना ले कि मुझे नमाज नहीं छोड़नी है, वो कैसी भी मशगूलियत के अंदर होगा, नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए तय करो, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तय करते हो? कौन कौन तय करता है? नमाजी भी बनेंगे और लोगों को नमाजी बनाने की मेहनत भी करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों देखो, ये दुआ है, इज्तिमा के अंदर दुआ होती है। हमारे यहाँ इज्तिमाई दुआ जो है ना, वो इनफिरादी दुआओं के अंत को कुव्वत पहुंचाने के लिए। हमारा बहुत बड़ा मजमा ये समझता है इज्तिमाई दुआ कर लो फिर काफी है, दूसरी दुआएं न करे तो। नहीं मेरे भाई, इज्तिमाई दुआ इसलिए है ताकि इनफिरादी आदमी अपने अलग से वक्त के अंदर दुआ मांगने का आदी बने। दुआ बहुत बड़ी चीज इस उम्मत को दी गई, बहुत बड़ी चीज।
कुरान पाक की एक आयत है, उदऊनी अस्तजीब लकुम, कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांग मुराद पूरा करूंगा। उलमा ने लिखा है ये बात अल्लाह ताला पहले अगले नबियों से कहता था, नबियों से बात कही जाती थी कि तुम मांगो मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। उस जमाने में उनकी उम्मत के अफराद को अपनी किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो पैगंबर के पास आते थे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते, हजरत सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आते और पैगंबर से कहते आप अल्लाह से दुआ करें ये काम हो जाए, आप अल्लाह से दुआ करें ये मुराद पूरी हो जाए। डायरेक्ट मांगने की इजाजत पैगंबरों को थी और उम्मत ये थी कि पैगंबर के वास्ते से दुआ करवाती थी। लेकिन मैं आप हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, इस उम्मत के बड़े फजाइल हैं, बड़ी खूबियां हैं। इस अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बड़े बड़े फजाइल से नवाजा है। इसमें एक बात यह है कि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने वो एजाज अता फरमाया जो अगली उम्मतों को दिया गया था कि इस उम्मत के एक एक फर्द से बात कही गई कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। हमारा इज्तिमाई अमल इसलिए होता है कि ताकि इंफरादी तौर पर हर आदमी देखे इसके पास अल्लाह का दीन कितना है। जैसे मार्केट में सबकी दुकानें होती है लेकिन रात को वकरा सबका अलग अलग होता है। रात में वकरा सबका क्या होता है बोलो? बैठे सब हैं, सब 10 से 8 की ड्यूटी देते हैं, सुबह 10 से लेकर 8 तक की सब मार्केट में दुकानों में ड्यूटी देते हैं, सब धंधा करते हैं, लेकिन रात को हर एक के गले का वकरा अलग अलग होता है। कारोबार इज्तिमाई है, सब मिलकर करते हैं, लेकिन धंधा रुपया रोकड़ कैश सबके पास अलग अलग होती है। तो हर आदमी ये देखता है कि आज मेरा कितना धंधा हुआ, किसी का कम किसी का ज्यादा। बड़े भाइयों सारे इज्तिमाई जितने अमाल दावत के हुए देखने के लिए है कि इंफरादी जिंदगी में मेरी इंफरादी जिंदगी में अल्लाह का दीन कितना है। हर एक आदमी अपनी इंफरादियत को जांचे टटोले, चलते सब रहे हैं करते सब रहे हैं, लेकिन मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। दुकान इसकी भी है इसकी भी इसकी है, इसने 10,000 कमाए इसने 15,000 कमाए और इसलिए कि इसकी तो मोहनी भी नहीं हुई, इसकी तो बिस्मिल्लाह सुबह से नहीं हुई, वो तो घाटे में रहा। 8 घंटे 12-10 घंटे ये भी मार्केट में बैठा है, देखना है। इसलिए मेरे अजीजों मेरे भाइयों दुआ इंफरादी तौर पर मांगने का एहतिमाम करें, वक्त निकाले इसके लिए, हाँ वक्त निकाले। हदीसों में है कि इकामत और अजान के बीच में दुआ कबूल होती है। मस्जिदों में जरा जल्दी आ जाया करें, सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा पढ़ लें, इसके बाद अल्लाह से 5, 7, 10 मिनट है लौ लगाकर दुआएं मांगे। हदीसों में है कि फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, फर्ज नमाज के बाद उठकर चले ना जावे, कुछ देर अल्लाह से मांगे। जुमा के दिन में थोड़ी सी घड़ी होती है, इसमें अल्लाह ताला हर मोमिन की दुआ को कबूल करता है। उलमा ने इसके अलग अलग वक्त बताए हैं। एक वक्त यह भी है कि जुमा के दिन असर की नमाज से लेकर मगरिब तक का वक्त होता है दुआ की कबूलियत का, और सबसे ज्यादा सुहाना वक्त दुआ की कबूलियत का पिछली रात की तहज्जुद का वक्त है। अब ताला शानु समाए दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और वहां से निदा और आवाज देते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन अगफिर लहु, है कोई माफी चाहने वाला माफ कर दूं, हल मिन मुस्तरज़िकिन अर्ज़ुक़ु लहु, है कोई रोजी का तलबगार कि मैं रोजी दे दूं। पिछली रात में उठने का एहतिमाम करें। अल्लाह हम सबको तहज्जुद की तौफीक दे, तहज्जुद की दुआओं की तौफीक दे। मेरे भाइयों आदमी मांगने का एहतिमाम करें। हमको सलातुल हाजत दी गई है कि अपना मसला नहीं काम नहीं बढ़ रहा, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो, अल्लाह से मांगो। सलातुल हाजत से भी मसला नहीं हल हुआ है, बुजुर्गों से सुना सलातुल तौबा पढ़े आदमी, 2 रकात सलातुल तौबा पढ़े, किसी भी वक्त में पढ़े, फिर अल्लाह से मांगे। अल्लाह सलातुल हाजत की बरकत से, सलातुल तौबा की बरकत से अल्लाह इसके कामों को आसान कर देगा, अल्लाह इसकी मुरादों को पूरी कर देगा। मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती है। हाँ कभी बर वक्त अल्लाह इसका नतीजा दिखाता है, कभी देर से दिखाता है, या कभी अल्लाह इसकी दुआओं को जखीरा बना लेता है। अल्लाह इसकी दुआओं जो जखीरा बना ली है, आखिरत में अल्लाह ताला इस दुआ का इनाम इसको देता है।
اس لیے دعا مانگنے کا اہتمام کریں. حدیثوں میں ہے الدعا یرد القضاء، دعا تقدیر کی برائی کو مٹا دیتی ہے. آدمی کی تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہوتی ہے نا، تو اس کو رد کرنے کی، اس کو ہٹانے کی طاقت کسی چیز میں ہے تو دعا کے اندر ہے، کہ دعا کی برکت سے تقدیر کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں. اجتماعی دعاؤں کو کافی نہ سمجھے. ٹھیک ہے اجتماع میں آگے دعا میں شرکت کر لی، لیکن اس کو کافی وافی نہ سمجھے. روزانہ اپنے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر کوئی وقت نکال کر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، میں ہوں اللہ ہے بس کوئی نہیں ہے، جی لگا کر آدمی دھیان توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرے. کروں گے انشاءاللہ بھائی، کروں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق